بولو شیخ شروع ہوئی. آئیے آئیے آپ لوگ سب آئیے, تشریف رکھیے. شیخ بدر صاحب کہاں تشریف فرما؟ شیخ ارشاد کہاں ہیں؟ شیخ ارشاد کا ہاتھ دکھا. ہمارے شیخ عبدالرقیب سلفی صاحب کدھر ہیں؟ حاضری تک دکھلائیے بھائی. وقت دکھنا چاہیے نا. ہمارے مکی صاحب کدھر ہیں؟ شیخ سلمان مکی حفظہ اللہ. مکی صاحب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد میں ایک سوال کر دیتا ہوں, باقی مشائخ اس میں گفتگو کریں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد سوال یہ ہے کہ نہیں اسی میں چلے شعر بھی ہو جائے گا. ابھی ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت عید میلاد النبی مناتی ہے, چند اہل حدیث اگر نہیں مناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہم اپنے احباب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ مطلب یہ اکثریت کیا اکثریت کی وجہ سے کوئی چیز حق ہو جاتی ہے, یا بلکہ اگر دیکھا جائے تو قرآنی آیات سے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ جَاهِلُونَ, قرآن نے تو اکثریت کو تو غلط راستے پر کہا ہے, اور قلیل من عباد الشکور کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کم ہوں. کیا کہنا چاہیں گے مشائخ اس پر؟ کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ملنا چاہیے. بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ منا نہیں, کھا لیے چند اہل حدیث مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہی غلطی پر ہے. تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اکثریت کی بیس پر کوئی فیصلہ ہوگا جائے کہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے. ہاں ایسی بات ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا حق تو دلیل کے روشنی پر رکھا جائے گا, اکثریت کی بنیاد پر نہیں, اور دلیل کی تعبیر سنت ہے. اور دوسری بات اہل حدیث سے صحیح رہنمائی کرنے والے یہ مخالفت ایک طرح سے ہم اس کو نہ کہیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ مخالف مجھے اس معنی میں نہیں ہے, ہمارے دشمن یہ بات ہم ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. ہم بدعت کی مخالفت کرتے ہیں نا, ہم بدعت کی مخالفت کرتے ہیں, ان کی مذاکرات کی مخالفت نہیں کرتے. اس چیز کا ثبوت نہیں, اس وجہ سے اس کو مسلم نہیں کہا. اور اگر قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو ایک آدمی اگر اس طرح وہ نہ کرنے والوں میں وہ حق ہے کتاب و سنت کی روشنی. اور اس کا ثبوت بہرحال کہیں سے ان کو مل بھی نہیں رہا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے اس سال یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو بغیر دلیل کے مانیں. یہ بھی ایسے بھی لوگ دل سے آگے لوگ آ گئے ہیں کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دلیل کے طور پر دینا پڑے گا. شیخ آخر میں بھی بنائے ہیں جیسے مہاراشٹر وغیرہ میں. ہاں وہ دن بدل لیا. دن بدلنے کے ساتھ ساتھ اصل میں ایک غلطی تو ان کی تھی کہ بدعت کر رہے تھے. جب ہم کہتے تھے کہ دلیل دو تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس کو مان لیں, تو انہوں نے قرآن حدیث کا غلط استعمال کیا, تاریخ کا غلط استعمال کر کے, اور ڈبل جرم میں پڑ گئے. ایک تو مناتے تھے وہ دوسرے غلط تعویل کر کے قرآن آیات کی. اور یہ بھی جو قرآن حدیث سے مطلب عقل شدہ ایک تہوار ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ عیدین کو بھی ایک دن سے دوسرے دن ٹرانسفر کیا گیا. بہرحال تو اس کا مطلب کہ اکثریت سے حق کا معیار نہیں ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ بدل اسلام و غریبہ, اس سے جو کما بدا, اسلام اجنبیت کی شکل میں ظاہر ہوا تو ایک وقت آئے کہ لوگ اس کے تھوڑے ہی رہ جائیں گے, وہ بھی اجنبی ہو جائے گا. تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو بدعت کہنے والے یہ غلطی پر. اکثریت کی مثال ایسے بھی دے سکتے ہیں, جیسے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں عیسائیت زیادہ ہے. ہاں کیا وہ ہفتے ہیں؟ پورے انڈیا میں ہندو زیادہ غیر مسلم زیادہ ہے. 80% اگر آپ تو کیا وہ ہفتے ہیں؟ شریعت سے ہم کرتے اچھی چیزیں زیادہ ہیں کہ زیادہ خرابی چیز ہے. اور زیادہ ہے کہ سونا زیادہ. شیخ فضل الرحمان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے, ان کے سامنے اس طرح کے کو کثرت کا معاملہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گولڈ بہت کم ہوتا ہے, گولڈ لوہا بہت زیادہ ہوتا ہے, لوہا بہت زیادہ ہوتا ہے. فیور چیز ہے. انہوں نے بہت اس طرح مثال اچھی دی. اب ابھی میں پھر وہ خان سر ایک ہے نا, اس نے کہا جانتے ہو کہ سونا کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اوپر زنگ نہیں لگتا, نہیں. اس لیے کہ پیلا ہوتا ہے, نہیں. اس لیے کہ کم ہوتا ہے, کم یاد ہے. ہاں کم یاد ہے. وہ اگر ہما شبہ شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے,
तो अरे वो खान सर सिर्फ खान है नहीं, वो खाली नाम था। नहीं वो असलियत क्या है तो चलो ये हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, जो भी हो। मालूमात बहुत गलत देता है। हाँ बहुत, पूरा मक्का के बारे में कितनी मालूमात गलत है, और उहद के बारे में। अरे उससे पूछा आपका मजहब क्या, तो बोलता मेरा मजहब ईसाई है। अरे वो अपना नाम तक नहीं बताता। वो सब जो है अपने फॉलोवर और जो है तलबा बढ़ाने के चक्कर में मुनाफिक तख्तियार जो करते हैं। तलबा है सबसे राखी बदवाया है। मुसलमानों को चाहिए कि उनसे इल्म हासिल ना करें उससे, क्योंकि वो जो है वो जो भी इल्म दे रहा है सब बेसरोपा दीनी इल्म हासिल ना करें। दीनी इल्म दुनिया भी आती वो भी तैयार भी करने के लिए ना। तैयारी जैसे हाँ जरूरी है। इस्लाम की तैयारी में जो भी वो मालूमात दे उस पर यकीन रखना करे, उसकी तहकीक करनी। दीन के ताल्लुक से जो बात बता रहा है। अच्छा मुश्किल क्या है कि हम दीन के नाम पर हर एक के पास जामिया तलम्मुस तय कर देते हैं। हाँ। जबकि अपने जिस्म की बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट भी को तलाश करते हैं कि दिल का स्पेशलिस्ट कौन है, कान का कौन है, नाक का कौन है, इसके बारे में हम खूब सर्च करते हैं, लेकिन दीन के मामले में ऐसा नहीं करते। अच्छा इसने जो सवाल किया था शेख तलाक के बारे में कि 3 तलाक हो चुकी है तो अभी उसको हलाला करवाना है, अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं, तो इसका जवाब कहाँ से शुरू किया जाए? 3 तलाक हुई ही नहीं है, एक बार कह देते हैं, इसका जवाब कहाँ से शुरू किया जाए? ऐसे वही बात वही है, मतलब मजलिस की 3 तलाक है, 3 तलाक नहीं, 1 तलाक है। लेकिन वो अगर गैर अगर मुस्लिम 3 तलाक शरई एतबार से हुई है तो उसकी तफसील है, इस तरह अगर हुई है तो हलाल नहीं हुई, इत्तफाक़ी ऐसा हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। जैसे मैंने एक बार तलाक दे दिया, एक ही बात में गुस्से में तलाक 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 10 बार दे दिया। अब गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, मैं चुप रहा, 2 महीना गुजर गया, मैं चुप रहा, तीसरा हैज भी आया, गुजर गया, चुप रहा। अब ये तलाक कौन सी तलाक हो गई? तलाक के बाइन गैर मुग़ल्लक़ा, तलाक के बाइन हो गई। अब इस औरत को हम निकाह जदीद से वापस ले सकते हैं, रुजू नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि तीनों हैज गुजर गया। अब इसमें निकाह जदीद नया निकाह से वापस ला सकते हैं। तो तलाक का सही तरीका यही होना चाहिए ताकि आदमी एक बार दे करके चुप रहे। अब वो जब 3 महीना गुजर गया तो अब तुम्हारे उससे गई खलास। अब वो 1 साल के बाद भी आ सकता है। अब वो 10 साल भी हो जाए, 15 साल भी हो तो भी निकाह जदीद से वो आ सकती है। एक साहब का 5-6 साल हुआ, मुझे सवाल कर रहे थे, हमने कहा 10 साल भी हो जाए, अगर वो एक ही महफिल में उसने कहा था तो 10 साल के बाद भी वो निकाह जदीद से आ सकती है, हलाला की जरूरत नहीं है। और हलाला की शरई हैसियत क्या है? जो सिटिंग के साथ करते हैं वो लोग समझते हैं कि वो जायज है। तो क्या हदीस ये लोग नहीं जानते, वो समझते हैं कि जब हो गया तो हलाला सेटिंग से कर, ये फेत खुद लानत का बायस है। अल्लाह ताला ने हलाला करने वाले कराने पर दोनों पर। और निकाह मतलब होता है बका और दमाम के लिए कि निकाह छोड़ने के लिए? निकाह है ही नहीं सर। निकाह का मकसद ही है कि बका रहे। निकाह का मकसद होता है कि बच्चा पैदा करना, उसमें मकसद है। अच्छा दूसरी बात, एक आदमी हनफी नाम भी नहीं देता ना, हलाला से कहते हैं हलाला। हनफी मुकल्लिद है बेचारा वो, तो दूसरे के लिए फेल वाक़ई हो जाए तो क्या मतलब इस निकाह के हद तक मसले के अहले हदीस पर वो अमल कर सकता है इस तलाक वाले मसले में? मतलब कि सही मसला। हाँ हमें ये सवाल मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को और भी कई लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैं ये लफ्ज ला रहा हूँ, एक हनफी आदमी इस मसले में फंस जाए, अब वो चाहता है कि किसी तरीके से हमारी बीवी वापस हो, ये हलाला जैसा हराम काम ना हो, तो क्या वो इस मसले में अहले हदीस और मुहद्दिसीन के मसले पर अमल करे? वो हनफियत उसकी बाकी रह जाएगी या कि वो मुश्किल है? हनफियत उसकी बाकी रहे ना बाकी रहे दूसरी चीज है, लेकिन हम जहाँ कुरान अगर से कोई अमल कर रहा है तो अगर ये चीजों में भी कोशिश करे कि भाई जो वैसे कहाँ बाकी है? सही हनफी में है कि हर साल निकाह है। कुरान और हदीस की जो चीजें करीब है उस पर अमल करे। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे हनफी उलमा इस मसले में कहते हैं कि जाओ किसी अहले हदीस से मसला बतवा लो। हाँ वो तो बिल्डिंग वो चाहते हैं कि अब इसमें ये मुश्किल में पड़ जाएगा तो जाओ किसी अहले हदीस मसले से पूछो। में नहीं पड़ेगी, इसमें गैरत की बात, गैरत की बात है, शर्म-ओ-आहट की बात। वो जानता है कि अगर हम इसे कहेंगे तो ये पलट जाएगा पूरे तकलीफ से तौबा अरे करेंगे। भाई एक लखनऊ का मामला था, मैं मेरा नहीं पूछ सकता, मुफ्ती जरूर ने कहा कि कराया बगैर कोई भी नहीं है, कोई खिलाफ नहीं, उन्होंने कहा बिल्डिंग मुफ्ती। तो मौलाना अब्दुल रहमान ने भेजा मौलाना बुला साहब के पास, बेचारा शाम पहुँचा मगरिब के बाद लखनऊ से, उन्होंने फतवा लिखा बाकायदा, वो बेबंदी था,
दिल को लेकर विधि को लेकर पूछा भेजते हैं बहुत सारे मसला सिर्फ इज्जत पे और बात है, इसलिए इस मुस्लिम में मेरा लोगों की करता है, अल्लाह कहता है अल्लाह आपको भी हिदायत दे। अरे वो आज तो जो है मजबूर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो वही कुरान और सुन्नत के कैसे मुताबिक में देने पे मजबूर हैं। हाँ तो इसके अलावा आपने दे नहीं इतिहास सकते। ये उस वक्त करार जो है जब इंडियन हुकूमत ये कानून बना रही थी उस वक्त बहुत सारे देवबंदी उलमा जिसे सारी उन्होंने लिखा था कि अगर इस मसले में अहले हदीस के उस पर अमल कर लेते तो कौन सी क्यामत आए। सही बात है। दिल खा भी भाई मैं इस खाने भी कहा था मैं इसीलिए ये मसला छेड़ा हूँ कि किसी एक मसले में अगर आदमी दूसरे मसले को अख्तियार कर ले तो क्या है। वहीदुद्दीन खान ने भी एक मौके पर कहा कि इस मसले में अहले हदीस सब सही बना हुआ है। इसको चालू रखता हूँ फिर इसके बावजूद भी मैं इसको से अल्लाह है तो ऐसे हनफियों को तो तौबा कर लेना चाहिए उसी का लानती फेल है। ऐसे लानत से बचा लिया गया, कम से कम अब तो कुरान और सुन्नत पे आ जाए। मसला वो एक- नहीं ना पाए। जैसे उन्होंने कहा कि ये कैसी उम्मत है कि फरमान नबी सुन के कहे मैं मुकल्लिद हूँ ना मानोगे मैं फरमाने है। सही बात है, ये हाल है। कुरान और सुन्नत से सीधा रास्ता है, चाहे उसको मानने वाले कम हुए या ज्यादा, किल्लत और कसरत हक का मेयार नहीं है। हक का मेयार है अल्लाह का कुरान, नबी की सुन्नत, साहब कराम का हम शहीद दिन आला ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं से मतलब इसकी तायीद होती रहती है और इस तरह मतलब क़यामत तक सिलसिला चलता है। हक़ और बातिल के दरमियान भी मार्का होता रहेगा, लेकिन वहाँ पर जो अहम चीज़ है कि हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करना, वो अगर तौफीक हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। इस बात हिकमत के साथ कही जाए, लेकिन जरूर कही जाए हक है हिकमत के साथ तो अच्छे अंदाज में। अच्छे अंदाज से कही जाए, लेकिन खामोश ना रहा जाएगा कोई। अगर सब खामोश रहेंगे बाद में सुनेंगे फला साहब भी तो थे फला भी थे तो वो तो नहीं। आप खुद ऐसा कर रहे हैं, अहले बातिल आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ ईसाइयत हो या दीगर मजहब के लोग रात दिन एक किए हुए हैं, तो अहले हक को उससे दो कदम आगे चलना चाहिए, रुकना कैसे। बातिल लोग से दिन रात मेहनत करते हैं। आप नेट की दुनिया देख लीजिए, सबसे ज्यादा नजर आएंगे वो। खान खान हम खान खान जो है हक, और अगर हक बात डालते भी तो उस पर भी लोग एतराज करते थे, मुझे सब घुम आएगी। हाँ मैं कल देखा रबानी साहब का एक वो, उन्होंने कहा कि मैं जुमा का खुतबा दे रहा था रबी लोगों के ऊपर, उसके बाद वो लाइव में चला रहा था, इतनी गालियां लोगों ने दी हैं मुझे, माँ बहन की। अच्छा कमेंट में हाँ कमेंट में, जब मेरी बेटी भी देख रही थी, मेरी बीवी भी देख रही थी, और वो ऐसी ऐसी गालियां दी हैं लोगों ने, लेकिन मैं क्या बताऊं। उसके बाद बैठ करके वो थोड़ा सा रद्द करे थे, कोई बात नहीं है तो मतलब अम्बिया की सुन्नत रही है, लेकिन बजाय इसके कि गालियां ये लोग जो अपने आप को जो है हनफी कहते हैं, जो अपने आप को तबलीगी कहते हैं, ये तमाम जिनका है इकराम मुस्लिम एक नंबर पर है, वो माँ बहन की गालियां मेरा गरबानी साहब को इस मौजू पर दिया है। वहाँ पे उनकी मोहब्बत रसूल मानते हैं, ये जो खबरें वहाँ नहीं मोहब्बत रसूल, वो कहा वैसे कि अल्लाह ने कभी किसी को गाली नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, और आप जो है हमको गाली दे रहे, हम नबी की बात कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। डांस करके जा रहे मोहब्बत हाँ, करके डांस डीजे बजा करके जा रहे को बुरा भला कहने वाले कोई मुसलमान थोड़ी ना, कोई ना ध्यान काफिर देखे। होता क्या है उसमें, ये यहाँ आज काफी नारे नहीं तकबीर, है। नारे रिसालत, डीजे और मुसलमान डांस, हाँ। सारी चीजें रिसालत की तौहीन रिसालत की तौहीन है सब पूरा। चले ठीक है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको हो जाए। हमको आपको सबको है जी। अच्छे अंदाज में दीन की बातें लोगों तक पहुँच जाए। बंद करनी चाहिए, फिनिश कर दो। शरीफ भाई वो पढ़ दो।